My precious children of God, I welcome all of you to this program and I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रिय बच्चों, मैं आप प्रत्येक जनों को इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आप प्रत्येक जनों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम पर प्रेमपूर्ण शुभकामनाएं देती हूँ। Today's promise is taken from Genesis chapter 13 verse 16. हाँ, आज का जो प्रतिज्ञा वचन है उत्पत्ति 13:16 से लिया गया है। I'll read it for you, my friends. Take your Bibles and read the verse along with me. मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगी, आप भी अपने बाइबल को ले लीजिएगा। And I will make your descendants as the dust of the earth, so that if a man could number the dust of the earth, then your descendants also could be numbered. प्रभु कहते हैं, मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो पृथ्वी की धूल की किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा। Abraham was a man of God. हाँ, अब्राहम परमेश्वर का एक संतान था। He was following the ways of the Lord carefully. हाँ, वो बड़े ध्यान से प्रभु की जो अनुगमन कर रहा था। But he has no child. परंतु उसके जीवन में कोई भी संतान की आशीष नहीं थी। For many number of years, he and his wife could not have children. हाँ, कई वर्षों तक वो और उसकी पत्नी दोनों को संतान की आशीष नहीं मिल सकी। The Lord promised to Abraham like this. हाँ, प्रभु ने अब्राहम को इस तरह से वचन दिया। We are going to read from Genesis chapter 22 verse 17. Blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. मैं आपके लिए उत्पत्ति 22:17 वचन को पढ़ती हूँ। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तेरी बालू किनकों के समत अनगिनत करूंगा। तेरे वंश अपने शत्रु के नगरों के अधिकारी होंगे। Even though Abraham sought the Lord diligently, he could not have children for many number of years. हाँ, यद्यपि उसने अब्राहम ने परमेश्वर को सच्चाई के साथ ढूंढा, परंतु कई वर्षों तक उसको संतान की आशीष नहीं मिल पाई। But he was clinging on to the Lord, his father, all the time. परंतु वो हमेशा पिता परमेश्वर को उनके चरणों को पकड़े रखा। That's why the Lord promised, the Lord told Abraham, I will bless you and multiply your descendants as the stars of the heaven. और इसी कारण प्रभु ने उसको आशीष दिया और कहा कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों की तरह और ज़्यादा बढ़ाऊंगा। My friends, you have to take your Bible and turn your Bible to Matthew chapter 1 verses 1 to 17. मेरे प्रिय दोस्तों, आप अपने बाइबल को मत्ती 1:16 और 17 के वचन के अनुसार मोड़िएगा। There we read about the genealogy of Abraham. हाँ, यहाँ पर हम अब्राहम की जो पीढ़ी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Until the birth of Jesus Christ, one after the other, all the godly children were born to him. और यीशु मसीह से पहले अब्राहम को एक के बाद एक धार्मिक पीढ़ी बच्चे पैदा होते गए। His generation was so blessed after a long time. हाँ, उसका जो पीढ़ी है बहुत ही अत्यधिक रूप से आशीषित था। If you are also following the ways of the Lord, God will provide everything as He provided our great man called Abraham. हाँ, अगर आप प्रभु के पद चिन्हों पर चलेंगे तब अब्राहम को प्रभु ने जिस तरह से आशीष दी उसी तरह आपको भी आशीषित करेंगे। God is going to bless you from today. हाँ, आज के दिन से प्रभु आपको आशीषित करेंगे। As Abraham sought Him diligently, you also seek Him with all your heart, night and day. जिस तरह अब्राहम ने प्रभु को सच्चाई के साथ ढूंढा, आप भी दिन और रात उनको ढूंढिएगा। Read the word of God. हाँ, प्रभु के वचन को पढ़िएगा। Cling on to Him tightly. हाँ, प्रभु के वचन को पकड़ कर रखिएगा। Whatever you need, it will be provided in a beautiful way. हाँ, आपको जो भी आवश्यकता है प्रभु आपको सुंदरता पूर्वक से उसको देंगे। Shall we pray? आइए अभी हम प्रार्थना करें। Father, thank you, Lord, for all the provision you are able to make to all your people. हे पिता परमेश्वर, आप अपने बच्चों के लिए जो जो आशीष दे रहे इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। Even now your children are praying unto thee. आज के दिन भी तेरी जो संतान है इस वक्त तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। Whatever they ask, Lord, provide everything in a beautiful way. हे प्रभु, इस वक्त जो जो प्रार्थना में मांग रहे हैं सुंदरता पूर्वक से आप उनको दीजिएगा। Especially remember those who are childless.
और विशेष रूप से जो निसंतान है उनको स्मरण कीजिएगा। Touch them, हे प्रभु Lord. उनको छुइएगा Let them be blessed like Abraham. और अब्राहम की तरह उनको आशीषित कीजिएगा Give them all that is necessary in their lives. और उनके जीवन की जो जो आवश्यकता है प्रभु आप पूरा कीजिएगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' mighty name we pray. और यीशु के सर्वशक्तिमान नाम से मैं प्रार्थना को मांगती हूँ। Amen. आमीन। My friends, are you thinking, where will my job come from? How will I get a promotion? मेरे दोस्तों, क्या आप सोच रहे हैं कि मुझे नौकरी कहां से मिलेगी, मुझे प्रमोशन कैसे मिलेगा? Through the Jesus Calls Job Blessing Plan, thousands have entered into God's plan for their job. यीशु बुलाता है कि नौकरी आशीष योजना के माध्यम से हजारों लोग अपनी नौकरी हेतु परमेश्वर की योजना में शामिल हो चुके हैं। Through this QR code, enroll now and have a great increase in your career. इस QR कोड के जरिए अभी पंजीकरण करें और अपने कैरियर में बड़ी तरक्की पाएं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Precious Sister Aarti Gupta, happy birthday. बहुमूल्य बहन आरती गुप्ता, आपका जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। God bless you richly this year and make you enjoy this year with all the grace, and may He give you a new house according to 2 Samuel 7:11. परमेश्वर आपको इस साल बहुतायत से आशीष दे और आप इस साल का आनंद उठाएं और परमेश्वर 2 शमूएल 7:11 के अनुसार आपको नया घर देकर आशीषित करे। Father, fulfill this promise, give her an own house and spiritual blessing. पिता, ये प्रतिज्ञा पूरी कीजिए, इन्हें अपने घर के द्वारा आशीषित कीजिए और आत्मिक आशीष प्रदान कीजिए। And Mr. Devendra Gupta have financial blessings and divine joy in the family and good health. और मिस्टर देवेंद्र गुप्ता आर्थिक आशीष पाएं, परिवार में ईश्वरीय आनंद और अच्छी सेहत प्राप्त करें। Chavi, darling daughter, have a better job and a wonderful protected life full of peace. In Jesus' name, let her have good health. Amen. प्यारी बेटी चावी पसंदीदा नौकरी पाए, इनके जीवन को सुरक्षित रखिए और शांति से भर दीजिए। ये अच्छी सेहत पाएं, यीशु के नाम में, आमीन। God bless you.